I'm Pragya from Noida. Recently, I was looking for my breast augmentation treatment. It was only my own choice. See, this is not basically the thing that I was facing any kind of comments and any comment on my figure. This is basically for myself only and for my better shape. So I tried to find out the best surgeon nearby me. So I met with Mr. Dr. Amit in Delhi. He clarified each and everything. I guess he is the best mentor, or he is the something person who cleared my all the issues and concern related to pre and post operations of the treatment. So I was quite satisfied with his suggestions and the things he told me to take care of it. So I decided to go for Dr. Amit Gupta for the breast augmentation surgery. He also suggested me for breast fat transfer, and second is for the breast augmentation. My body is not very wholesome fatty, so I opted for the breast augmentation for myself. And this is my pre-operation interview right now. I'll definitely share the after effects and after operation reviews with you as well. And as of now, I'm completely happy and satisfied with Dr. Amit Gupta. So this is basically, it's all in all, like the girls who wanted to go for the treatment, I would personally suggest, previously I was quite scared of the after effects and the scar marks, and my family is not also supportive, my friends is also not supportive, my partner is not also supportive. But even actually this is my own option, this is my own choice. But मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, dear girls, you should go for it if you wanted to go for it. There is nothing reason like Dr. Amit Gupta is quite enthusiastic person. He is very supportive. The staff is very supportive, and you should go for it. Just be confident. Have confidence. You can calm down. It would take around 1.5 hours of the surgery, and you do not need to tell anyone, or it's a quite fine surgery, I would suggest you all. After surgery, I would expect I'm very confident. I'm not expecting. I'm very confident कि जिस हिसाब से Dr. Amit Gupta ने मुझे बताया है, and what I am expecting, the better shape in my figure and my breast size. So definitely I'll get it. Definitely. Hi friends, today we are just about to start a breast implant surgery. What are the problems we face with breast implant surgery? पेशेंट के लिए क्या प्रॉब्लम्स होती हैं प्लानिंग में एंड बाद में. सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक पेशेंट के माइंड में क्या होता है एंड वो क्यों किस तरह डिसाइड कर पाते हैं अबाउट साइजेस. सो मेनी पेशेंट्स डोंट नो उनको किस तरह का ब्रेस्ट चाहिए. इनफैक्ट अगर हम पेशेंट से पूछें कि उनका ब्रेस्ट साइज क्या है, दे डोंट नो. सो दे गो बाय व्हाट द ब्रा मैन्युफैक्चरर्स से कि हम ये ब्रा साइज पहनते हैं, जो कि मोस्ट इनएक्यूरेट है. सो टू फाइंड आउट द कप एंड द ब्रेस्ट साइज, एक मेजरमेंट टेप से इस लेवल पे हम ऑल अराउंड लेंगे तो हमें ब्रेस्ट साइज पता चलेगा 30, 32, 34 व्हाटएवर इट इज. एंड अगर निपल के लेवल पे मेजरमेंट लेंगे तो जो डिफरेंस है उससे कप साइज निकलता है. सो 2 इंचेस का डिफरेंस है तो बी कप, 3 का है तो सी कप, 4 इंचेस का अगर डिफरेंस आता है टेप मेजर में तो डी कप. सो अकॉर्डिंगली दैट इज द साइंटिफिक वे ऑफ फाइंडिंग आउट द ब्रेस्ट साइज. एंड अकॉर्डिंगली हम फिर पेशेंट से पूछते हैं कि सपोज आप बी कप हैं तो आप कितने कप्स ऊपर जाना चाहते हैं. कप का मतलब होता है ब्रेस्ट. बेसिकली जो ब्रा का जो कप होता है वो कितना बड़ा करना चाहते हैं. नॉर्मली इंडिया में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, 2 कप इंक्रीज इज व्हाट मोस्ट पीपल वांट. सो जनरली जब हम इम्प्लांट यूज करते हैं तो 1.5 से 1.75 कप इंक्रीज होता है, जो कि एक नॉर्मल इम्प्लांट क्रिएट करता है. सपोज हम एक अल्ट्रा हाई इम्प्लांट यूज करते हैं या बड़ा साइज यूज करते हैं तब 2.5 कप्स, जो कि इन माय व्यू एक एवरेज इंडियन पेशेंट के लिए थोड़ा बड़ा होता है. अनलेस समबडी वांट्स अ बिग इम्प्लांट या समबडी इज इन द शो बिजनेस मीडिया जहां पे उनको वो उस तरह की लुक चाहिए. बट फॉर मोस्ट नॉर्मल पीपल इट इज इंपॉर्टेंट कि हम 2 कप साइजेस से जस्ट कम या देयर अबाउट्स तक एनलार्जमेंट रखें तो लुक बहुत नेचुरल आती है. तो हाउ डू वी प्लान? इंसिजन किस तरह प्लान करते हैं? सो मिड लाइन चेस्ट निपल के थ्रू रन करते हुए जो इंसिजन है 2/3, 1/3, 1/3 इनर सेल्फ एंड 2 इनर साइड एंड 2/3 आउटर साइड. उसका रीजन जब हील अप कर जाता है तो ब्रेस्ट में इंसिजन अगर यहां पे होगा तो दिख जाएगा कि कुछ कट लगा है. सिमिलरली ऑन द अदर साइड 1/3, 2/3 4 सेंटीमीटर का इंसिजन इनफ रहता है एक 300 से 375 सीसी तक इम्प्लांट यूज करने के लिए.
400 सीसी के लिए थोड़ा सा बड़ा चाहिए होता है। नेक्स्ट, वी टेक एन असेसमेंट ऑफ द बेस डायमीटर। बेस डायमीटर इज द बेस ऑफ द ब्रेस्ट। इम्प्लांट का जो बेस है वो बेस डायमीटर और ब्रेस्ट का और इम्प्लांट का मैच करना चाहिए। एंड सो वी टेक एन एस्टिमेट ऑफ दैट। ऑलरेडी प्री मेजरमेंट सब कुछ प्लान हो चुका है। देन वी टेक एन एस्टिमेट ऑफ हाउ थिक द ब्रेस्ट टिश्यूज, ब्रेस्ट के अंदर कितना फैट और ग्लैंड है। जितना ज्यादा होगा उतना ब्रेस्ट कम स्ट्रेच करता है एंड देयरफॉर बहुत बड़ा इम्प्लांट हम नहीं यूज कर सकते। ऑल्सो व्हाट इट मीन्स कि अगर ब्रेस्ट के अंदर टिश्यू ज्यादा है, अगर हम इम्प्लांट एक एवरेज साइज इम्प्लांट भी यूज करेंगे, ब्रेस्ट बड़ा दिखेगा, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट का अपना एक रीजनेबल ब्रेस्ट टिश्यू है। जिन पेशेंट्स में ब्रेस्ट टिश्यू कम होता है, थिन स्किन थोड़ी सी थिन होती है, ब्रेस्ट अमाउंट कम होता है, उनमें हम ज्यादा बड़ा इम्प्लांट यूज करेंगे तभी वो लुक आएगी। सो इन माई पेशेंट टुडे, इफ वी यूज अबाउट 300, 315, 20, 275, 280, इस रेंज में अगर हम इम्प्लांट यूज करेंगे तो बहुत नेचुरल लुक आएगी एंड इट विल बी लाइक कि इम्प्लांट हमने अपने लिए किया है, ना ही दुनिया को दिखाने के लिए कि कपड़ों में से इट शुड नॉट बी क्लियरली विजिबल कि इम्प्लांट दिख रहा है। सो दैट इज व्हाट वी प्लान टुडे। 300, 305 सीसी इम्प्लांट, दोनों के बेस डायमीटर मैं अभी चेक करता हूँ, दैट विल हेल्प अस डिसाइड विच इम्प्लांट वी हैव टू। प्रोसीजर कैसे होता है, यहाँ से इंसिजन दिया, पॉकेट बनाई, सब फेशियल अप्रोच हम लोग यूज करते हैं एंड सर्जरी टेक्स अबाउट एनीथिंग 35 to 50 मिनट्स, 45 मिनट्स के आसपास। सर्जरी के बाद 5 से 6 घंटे में घर, उल्टा नहीं सोना है 3 वीक्स तक, कोई एक्सर्शन नहीं करनी है अबाउट 10 डेज, पुशअप्स करने हैं, हैवी वेट्स उठाने हैं तो 3 वीक्स, एरोबिक्स आप अराउंड 14 डेज पे स्टार्ट कर सकते हैं। जेंटल कार्डियो, लेग्स, बाइसेप्स यू कैन स्टार्ट अराउंड 10 डेज टाइम। स्टिचेस हील होने में 3 वीक्स। प्रोसीजर के बाद हम लोग सिलिकॉन जेल्स देते हैं ताकि स्कार बहुत मिनिमाइज हो जाए। ओवर 3 मंथ पीरियड स्कार जस्ट बिकम्स अ वेरी फाइन लाइन। Hi everyone, this is the Pragya again from Noida. Yesterday I had gone through my surgery and it was a very painless surgery that I gone through. The treatment was very overwhelming. So yesterday मेरी surgery हुई. It was a very complete painless surgery that I gone through. This is basically for those person जैसे मैं last day I was quite scared कि दर्द से या कैसे आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, मुझे किन किन आफ्टर इफ़ेक्ट से गुजरना पड़ेगा। नथिंग एज सच। टुडेज मैं आज मेरी बैंडेज भी रिमूवल हुआ है। आई हैव सीन माई ब्रेस्ट इम्प्लांट एंड आफ्टर इफ़ेक्ट, मैंने उनके इमेज भी देखी एंड आई हैव सीन माई कंडीशन एज वेल. It was that much accurate that I was looking for in my body shape. So basically I'm very happy and nothing as such, कोई ऐसा पेन नहीं है. I'm just मैं अभी भी शायद next 2 hours में अपने ऑफिस विजिट करूँगी, जा सकती हूँ आराम से and can do my routine work. Yes, basically the precautions are like you do not go for exercise and heavy weights lifting, ये सब कुछ नहीं, बट हाँ ओवरऑल मैं आफ्टर 7-10 डेज बाद उसको कैरी ऑन कर सकती हूँ. Nothing as such, don't worry. For those girls who want to go for it, just have confidence. Contact Dr. Amit Gupta and the courteous, like I would say it's a courteous staff over here. You can contact them anytime, just fearlessly and go for it. Hi, this is Pragya again. I'm here to share my after 10 days review or feedback of my breast implant surgery with you all. So it's all done. 10 days already हो चुके मेरी surgery को. There's now nothing such pain as of now क्योंकि I have undergone through doctor consultation as well. So they are saying it's healing very fast and very accurately or as per the expectation जैसी होनी चाहिए. So it's healing very well after all. There is no such pain, there is no swelling, little bit is there, but ये है कि healing के pattern में है अभी, और there is no such discomfort as of now. So जिस तरीके से मुझे 1 या 2 दिन में फील हुआ, क्योंकि मैंने सेकेंड डे ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इट्स ऑलरेडी 10 डेज. सो मुझे किसी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, ना किसी तरीके का पेन है. देयर इज़ नथिंग एज सच. सो जिस तरीके का मैं एक्सपेक्टेशन रख रही थी आफ्टर माई ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, द शेप एंड साइज,
Thank you, Dr. Amit, and the brilliant surgeons over here, and my courteous staff over here. The expectation is accurately the result over here. It's exactly what I got. Thank you so much. Scar is all about, like, Scar is काफ़ी डाउन है और हीलिंग वेरी वेल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया. सो जैसे कि मैंने कंसल्टेशन भी लिया, तो दे आर सेइंग बीनीथ दी beneath the breast line. So it's not very revealing बिल्कुल भी नहीं है, visible ही नहीं है अब बिल्कुल. So it's quite good, very very nice. जो मेरी इंसिजन और जो सर्जरी लाइन है ब्रेस्ट की, वो it just beneath the breast line. मैं खुद से भी नहीं देख पाती हूँ, so अदर्स की तो बात ही नहीं आती.